बच्चों, वेलकम यू टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ 9th स्टैंडर्ड. Either you are from any board of ICSE, CBSE or NCERT or any state board or SSC board, these all mathematics formulas are same. So today I am just trying to give you the synopsis or some of the conceptual things to remember the formula. Because what happened, the trigonometry was not in your previous class. So trigonometry is the one of the introductory chapter in your 9th standard. So to remember the formula, it is really one of the important part and to keep always in your mind, right? Because trigonometry can be solved only with the help of trigonometric formula. So in the previous tutorial, I have given you some of the formulas of the trigonometry. Today I am going to give you the trigonometric ratios formula. So in trigonometric ratios formula in table, just you will have to consider this ABC is the right angle triangle, where B is the right angle, and this ABC where AC, this hypotenuse is AC, this AB perpendicular means P, and this BC is the base. Remember it, you can write it in H or H, you can write it P or you can write it B. So the trigonometry base depend on this right angle triangle, the basic formula. Similarly, there are certain things which you need to understand. In the next, you will learn in the coordinate geometry these all things, but this is also one of the important part of the trigonometry, where you would need to understand the quadrant of the all four sides. So this is x-axis, this is y-axis. So here, from here, if you will consider, the right side of this x is a positive, this is positive. This y side is the positive, this side is the negative, and this side again is the negative. So means there is a x and x dash, where x is positive and x dash is the negative, where y and y dash, where y is positive part and x y dash is the negative part. So this only the introductory part, you need to understand it, right? So this term comes with a plus, this term and this term will come with the minus. Now I want to make you understand this ratios of this trigonometric ratios of angle 0 degree, angle 30 degree, angle 45 degree, angle 60 degree, angle 90 degree, where this theta is considered is equal to angle. एंगल मीन्स कुछ भी हो सकता है, ये 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है. See, either you are from whatever medium, either you are the medium of English medium, Hindi medium, Marathi medium, whatever medium, but the every medium of mathematics has their trigonometry. So sometimes if your mother tongue is something else, if your mother tongue is not English and you are not understanding everything is in English, try to understand that things even in your mother tongue, either it is Hindi or either it is in Marathi. मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आप ICSE बोर्ड में हो, CBSE बोर्ड में हो, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हो, लेकिन पढ़ाने के समय में अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करो. समझना इज द डिफरेंट पार्ट एंड लैंग्वेज इज द डिफरेंट पार्ट. सी, आदमी किसी भी लैंग्वेज में इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है, मैंने बहुत बार कहा है और अभी भी कहता हूँ. ईदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और वट एवर मीडियम, हिंदी मीडियम, दिस मीडियम डजंट मेक एनी डिफरेंसेस. जस्ट ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? दिस साइन 0 डिग्री. अब हमने एक सिंपल एक टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं जिसमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री,
Sine 90 degree. This indicate all the degrees. This indicate all the degrees. So sine 0 degree is 0. Sine 30 degree is 1/2. I am not going in the depth क्योंकि आपके 9th स्टैंडर्ड में कुछ अलग अलग कैलकुलेशंस दिए हैं, लेकिन हमें बस जो याद करना उतना ही याद करना है. Sine 45 degree is 1/√2. Sine 60 degree is √3/2. Sine 90 degree is 1. Now there are different ratios are also there, right? अब 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में भी कुछ है, 22.5, 45 और 60 के बीच में. लेकिन ये जो रेशियोज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आगे जाकर के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में 180 डिग्री है. बट दीज ऑल फाइव्स आर वेरी कॉमन व्हेन यू विल सॉल्व द मैथमेटिक और मैथमेटिकल ratio of trigonometry. You need to remember it. Now cos, this again indicate the angle, this theta indicate angle. तो मीन्स यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थीटा लिखते हैं तो थीटा को हम एंगल मानते हैं. सो जहाँ पे साइन है थीटा इज साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन दिस 30 डिग्री, दिस इंडिकेट 30 डिग्री, दिस इंडिकेट 45 डिग्री, दिस इंडिकेट 60 डिग्री, दिस इंडिकेट 90 डिग्री. Similarly, cos 0 degree is 1, cos 30 degree is √3/2, cos 45 degree is 1/√2, cos 60 degree is 1/2, cos 90 degree is 0. Similarly, tan 0 degree, tan 0 degree is 0, tan 30 degree is 1/√3, tan 45 degree is 1, tan 60 degree is √3, tan 90 degree is infinity. अब आपको ये समझना है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली दिस. इफ यू नो दीज ऑल फॉर्मूला ऑफ साइन कॉस टेन, ऑटोमेटिकली यू कैन रिमेंबर इट द फॉर्मूला ऑफ कॉट सेक एंड कॉसेक. सो व्हाट आई मीन टू अंडरस्टैंड, ये जो टेन का अपोजिट है कॉट, द अपोजिट ऑफ टेन इज व्हाट, कॉट. कॉस का अपोजिट है सेक और साइन का अपोजिट है कॉसेक. आपको बस इतना याद रखना है. तो अगर हमें साइन 0 डिग्री पता है तो हमें कॉसेक 0 डिग्री पता चल जाएगा. तो एक चीज और याद रखना है, जब कभी भी 0 आता है तो उसका जो अपोजिट होता है हम उसके बदले में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसके बदले में, इन्फिनिटी हो जाता है. और 1 का जो अपोजिट होता है 1 ही होता है. तो अगर 0 का अपोजिट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का अपोजिट 0 हो जाएगा. इट मीन्स बोथ आर म्यूचुअली कोलैबोरेटेड विथ ईच अदर, राइट. बस याद करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है. अब मैं लिखता हूँ tan 0 डिग्री, हमें पता है tan 0 डिग्री इज व्हाट, 0. सो cot 0 डिग्री इज व्हाट, इन्फिनिटी. ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा. ये ब्लैक में लिखा है, मैं रेड से लिख रहा हूँ. cot 30 डिग्री इज व्हाट, 1/√3. तो 1/√3 इज इक्वल टू √3, बिकॉज √3 के नीचे आप 1 लिखोगे तो वो √3 ही होगा. √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/√3 का √3/1. लेकिन हम ये 1 को नहीं यूज करते, राइट. सो व्हाट, cot 30 डिग्री इज √3. अब cot 45 डिग्री, 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 होता है. अपोजिट ऑफ 1 इज व्हाट, 1. cot 60 डिग्री इज व्हाट, √3. अब √3 का अपोजिट क्या होगा, 1/√3, राइट. cot 90 डिग्री, इन्फिनिटी का अपोजिट क्या होगा, 0. मीन्स अगर आपको tan पता है तो ऑटोमेटिकली आपको cot पता चल गया. tan 0 डिग्री इज 0, सो cot 0 डिग्री इज इन्फिनिटी. tan 30 डिग्री इज 1/√3, so cot 30 degree is √3/1, but we remember only √3. Now tan 45 degree is 1, so cot 45 degree is 1, यानी 1 का अपोजिट 1 ही होता है. Now tan 60 degree is √3, तो √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/√3. cot 90 degree is what, infinity. Sorry, tan 90 degree is what, infinity, so cot 90 degree is what, 0. ना अभी हमने क्या बताया था, tan का अपोजिट cot होता है. इससे पहले भी हमने समझाया है, जो
अलग अलग फॉर्मूले में साइन कॉस टेन अगर पता है तो हम ऑटोमेटिक कॉट सेक और कॉस सेक को उसी से रिसिप्रोकेट कर देते हैं, राइट। सिमिलरली कॉस का अपोजिट क्या है, सेक। सो कॉस 0 डिग्री इज व्हाट, कॉस 0 डिग्री इज व्हाट, सो सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1। नाउ कॉस 30 डिग्री इज व्हाट, √3/2, so this would be 2 upon √3, right? Opposite. Cos 45 degree is what? 1 upon √2. So this is opposite of 1 upon √2 का opposite क्या हो जाएगा √2. Now cos 60 degree is what? Cos 60 degree is what? 1/2. So sec 60 degree is what? 2. 1/2 का opposite 2 हो जाएगा. Now cos 90 degree is what? cos 90 डिग्री इज व्हाट, 0। तो सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। हमने आपको बताया है कि 0 का अपोजिट इन्फिनिटी होता है, इन्फानाइट होता है, राइट। नाउ कॉसेक इन्फानाइट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड, सो डोंट गो इन द अंडरनीथ, जस्ट हमें ये याद करना है। तो मैं ये टेक्निकल टर्म इसके लिए बताता हूं कि अगर मैं ये चीज आपको बता दूंगा तो फ्यूचर में आपको हमेशा याद रहेगा। नाउ हमने बताया है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, सो साइन 0 डिग्री इज 0, सो कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फानाइट। नाउ कॉसेक 30 डिग्री इज व्हाट, ये 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा। नाउ साइन 45 है, 1/2, सो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2। नाउ साइन 60 डिग्री है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। नाउ साइन 90 डिग्री क्या है, 1, सो कॉसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1। मेरा समझाने का ये एक सिंपल तरीका है, एक सिंपल चीज़ें हैं, बिकॉज बहुत बार हम इसको याद नहीं रख पाते। आपको ये समझना है साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, मीन्स अपोजिट ऑफ साइन इज कॉसेक, अपोजिट ऑफ कॉसेक इज सेक एंड अपोजिट ऑफ टेन इज कॉट। क्लियर? तो अगर आपको साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, अगर आपको साइन 0 डिग्री पता है, अगर आपको साइन 30 डिग्री पता है, अगर आपको साइन 45 डिग्री पता है, अगर आपको साइन 60 डिग्री पता है, अगर आपको साइन 90 डिग्री पता है, तो ऑटोमेटिक आपको कॉसेक का हर एक फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर आपको कॉस 0 डिग्री पता है तो ऑटोमेटिक सेक पता चल जाएगा। आपको कॉस 30 डिग्री पता है तो आपको सेक 30 डिग्री पता चल जाएगा। मीन्स एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसको करना क्या है बच्चों, आपको सिर्फ कम से कम 5 से 6 बार इसको कॉन्सेंट्रेट करके अपने कॉन्सेंट्रेशन में इसको याद कर लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेक करके LHS RHS के टर्म में जाएंगे, ये कहाँ से आया, इट्स नॉट ऑन दैट लेवल, ओनली जस्ट यू ट्राई टू रिमेंबर दिस trigonometric ratio formula of table. Now I have written it very clearly. The trigonometric ratios for some specific angle such as 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree are given above, which are commonly used in mathematics calculations. यानी आप जो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करोगे उसमें इस चीज़ का बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। अब इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर आपको ये इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा को किस तरह से लिखेंगे, तो हम उसमें नहीं जाते। अब हमारे लिए एक नया चीज़ हमने यहाँ पे दिया कि हम ये भी आपको समझाना चाहते, क्वाड्रेंट। तो ये जो एक्स एक्सेस है, दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सेस, दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सेस and this is called the y axis. तो जो राइट साइड है ये पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, और ये x डैश जो है हमेशा नेगेटिव होता है, और ये y डैश है ये नेगेटिव होता है। ये समझाने के लिए इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इसमें टेक्निकली इसमें ऑल क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब हमने क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखा। अब ये देखो क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है साइन, कॉस, टेन सब क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव।
सब पॉजिटिव है, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव है, साइन क्या है, पॉजिटिव है। और आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक क्या है, पॉजिटिव है, क्या है। अगर साइन अपने को पता है, साइन अपने को पता है तो कॉसेक पता चल जाएगा, तो मीन्स साइन पॉजिटिव है, राइट। और दूसरा क्या है, कॉस निगेटिव है और टेन निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन और कॉट, मीन्स टेन और कॉट क्या है, पॉजिटिव है। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। अब आपको समझना है इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है। तो साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक। कॉस का अपोजिट क्या है, सेक। और टेन का अपोजिट क्या है, कॉट, राइट। तो मीन्स साइन और कॉसेक, सेक और कॉसेक, और कॉट और टेन। सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन और कॉट पॉजिटिव है और नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और सेक। अब कॉस और सेक क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, राइट। और साइन और टेन नेगेटिव है। सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस ट्रिग्नोमेट्री इज very simple, very easy chapter, and this trigonometry will really help you in the future to learn better mathematics, to go through your conceptual things. मैथमेटिक्स एक चीज़ अच्छी तरह से आप समझना, ये आप इसको एक मोटिवेशन समझना अपने लाइफ में। अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा होना है तो मैथमेटिक्स के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आप कम से कम 4 नोटबुक बनाओ। एक नोटबुक ऐसा बनाओ जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वो स्कूल का नोटबुक बनाओ, और साथ में वो सेम नोटबुक एक अपने लिए बनाओ जो स्कूल में आप क्या पढ़ते हो। सेकेंड, ऐसा होता है कि आपके मन में क्या डॉट है, आप क्या बनाना चाहते हो। दूसरा, अगर आप कहीं पे पढ़ाई करते हो या सपोज आप ये ट्यूटोरियल के थ्रू पढ़ते हो, तो इसमें जो आप पढ़ते हो ये तीनों को कंबाइन करके आप एक फेयर नोटबुक बनाओ। मेरा तो ऐसा मानना रहता है कि अगर मैथमेटिक्स आपको अच्छा करना है तो आप लिखते जाओ। मैं तो अपने करियर में ऐसा करता था, मेरे मैथमेटिक्स के एक एक चैप्टर के एक मैथ के हमारे पास 5-5, 10-10 नोट्स होते थे। हमें याद है मेरे बचपन के दोस्त अब हमारे मैथमेटिक्स के फेयर के नोटबुक लिया करते थे कि आप अपना फेयर का नोटबुक बताओ, आप अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बताओ, बिकॉज आई वॉज वेरी कीन बिहाइंड विद द मैथमेटिक्स। आई वॉज वेरी कीन बिकॉज जब कभी भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था तो मेरे मन में यही चीज़ रहता था, ये सम्स मुझे नहीं भूलना है। और मैथमेटिक्स को आप याद नहीं कर सकते हो, मैथमेटिक्स कैन नॉट बी रिमेंबर, मैथमेटिक्स कैन बी सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। आप समझो जैसे जैसे स्टेप्स आप जाओगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक आपको एक मैसेज है कि आप मैथमेटिक्स का कम से कम 4-5 नोटबुक बनाओ, और आप जितना नोटबुक बनाओगे, जितना स्टेप्स आप सॉल्व करोगे, उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मीन्स एक चीज़ आप याद रखना, मैथमेटिक्स कैन नॉट बी रिमेंबर, ओनली फॉर्मूला कैन बी रिमेंबर। बट अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला जो सम्स है, वो सम्स का स्टेप्स सीखने के लिए आपके पास लिखने के अलावा और दूसरा ऑप्शंस नहीं है। तो आप कोशिश करें 3-4-5 नोटबुक बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच। आप इस ट्यूटोरियल के लिए आपको लिंक दिया जाएगा, इस लिंक में आपको 2-3 चीज़ मिलेगा। एक तो जो मैंने सॉल्व किया है ये, एक टेक्निकली आपको पूरा इस चीज़ का जो एक वर्ड फॉर्मेट में है, PDF फॉर्मेट में लिंक दिया जाएगा जिसको आप कॉपी कर सकते हो। तीसरा, आप इसके ट्यूटोरियल को अच्छी तरह से समझ सकते हो और अपने सम्स को सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।